Good morning, my dear student. Today we are going to start your class 11th history chapter Path to Modernization. Today we will discuss the topic establishing the new democracy 1949 to 65. My dear, the People Republic of China government was established in 1949. It was based on the principle of the new democracy and alliance to all social classes. Unlike the dictatorship of the proletariat that the Soviet Union said it had established the critical area of the economy were put under government control and private enterprises and private ownership of land were gradually ended. This program lasted till 1953 when the government declared that it would launch a program of socialist transformation. The Great Leap Forwarded movement launched in 1958 was policy to galvanize the country to industrialize rapidly. Poor were encouraged to set up steel furnace in their backyards. In the rural areas, people communes where land whole be collectively owned and cultivated were started by 1958. There were 26,000 communes covering 98% in the farm population. Mao was able to mobilize the masses to attain the goals set by party. His concern was with the creating socialist man who would have five love, fatherland, people, labor, science and public property. Mass organization were created for farmers, women, students and other groups. For instance, that All China Democratic Women's Federalism had 76 million members. The All Chinese Student Federation 3.29 million members. These objectives and methods did not appeal to everyone in the party. In 1953-54, the some were urging for more attention to industrial organization and economic growth. Liu Shaoqi and Deng Xiaoping tried to modify the commune system as it was not working efficiently. The steel produced in the backyard furnace was unstable industry. My dear, this paragraph, this topic has already explained by me in your previous video. Even in short, I would like to discuss with you this point, this paragraph. And in this paragraph, you find that कि कुछ चीजें बदल रही हैं. अब पुरानी सोच को लोगों ने, अब पुरानी कम्युनिस्ट जो मेथोडोलॉजी है, जो पुरानी विचारधारा है, उसको लोग बदलने की बात कर रहे हैं. आपने देखा कि किस तरीके से न्यू डेमोक्रेसी 1949 टू 65 तैयार हुई, बनी. मैंने कहा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार 1949 में जब बनी तो वहां नए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित एक नई सरकार का गठन किया गया. एक वर्ड मैंने कहा था, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट, जिसे कायम करने का दावा सोवियत संघ का था. ये पुरानी परंपरा थी जो चीन में भी लागू की जा रही थी. चीन के लोगों को इसके लिए समझाया जा रहा था कि इट वुड बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इफ यू विल स्टेब्लिश, एंड इन दिस गवर्नमेंट यू कैन इजिली फ्लोरिश योर सेल्फ. आप अपने को डेवलप कर सकेंगे. अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र, इकोनॉमी के मेन सेंटर गवर्नमेंट के अधिकार में होंगे. जैसे लैंड है, जो निजी भू स्वामित्व है वो धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा. पब्लिक ओनरशिप में उसको लाया जाएगा. इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को भी इंडिविजुअल ओनरशिप से गवर्नमेंट की ओनरशिप में, पब्लिक ओनरशिप में लाया जाएगा, गवर्नमेंट की ओनरशिप में लाया जाएगा. प्राइवेट जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो हटा करके उसकी जगह पब्लिक प्रॉपर्टी की स्थापना की जाएगी. यह कार्यक्रम 1953 तक चला, जब सरकार ने समाजवादी बदलाव का कार्यक्रम शुरू किया, करने की घोषणा कर दी. फिर धीरे धीरे देश का विकास हुआ, चीन का डेवलपमेंट हुआ.
चीन ने लोगों को अपने घरों में ही फर्नेस लगाने, स्टील फर्नेस लगाने की बात की और स्टील के उत्पादन की बात की। गवर्नमेंट ने गांव में कम्यून की स्थापना कर दी। कम्यून इट मीन्स कि जमीन का एक टुकड़ा जिसपे सभी लोग उस जमीन के मालिक और सभी लोग मिलजुल कर वहां पे खेती करें। 1958 तक कहता है 26,000 ऐसे कम्यून दिखाई देते हैं, जो इस कम्यून के 98% पीजेंट्स थे। माओ पार्टी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पाने के लिए जन समुदाय को प्रेरित करने में सफल रहे। उनकी चिंता समाजवादी व्यक्ति बनाने की थी, जिसमें 5 चीजें महत्वपूर्ण थी। वो कह रहे थे कि व्यक्ति के अंदर अपने देश के प्रति, पृथ्वी के प्रति लगाव होना चाहिए। जनता ही देश की वास्तविक ताकत होती है, इसलिए पब्लिक पीपुल की बात करते हैं। कहते हैं काम, वर्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और फिर साइंस और पब्लिक प्रॉपर्टी, ये 5 चीजों की बात करते हैं। कहते हैं अगर ये 5 चीजें होंगी तभी एक देश में हम एक कम्युनिस्ट ह्यूमन या कम्युनिस्ट मैन बना सकते हैं, या ऐसे आदमी का निर्माण कर सकते हैं जो सोशलिस्ट हो, जो समाजवादी विचारधाराओं से माने। और फिर धीरे धीरे ऑल चाइना डेमोक्रेटिक वीमेन फेडरेशन, ऑल चाइना स्टूडेंट फेडरेशन की स्थापना हुई और उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। ऑल चाइना स्टूडेंट फेडरेशन में तो 32,90,000 लोग थे। लेकिन ये लक्ष्य, सभी लोग ये जो बदलाव हो रहा था उसको पसंद नहीं कर रहे थे। कुछ लोगों का मानना था कि ये परंपराएं जो हैं वो ट्रेडिशनली हैं, हमें इसको बदलना चाहिए, हमें इसकी जगह एक नई व्यवस्था कायम करनी चाहिए। अब बदलाव में 2 लोगों का नाम आता है, तंग सियोफिंग और लियू शाओची, जिसे मैंने डेंग जियोपिंग आपके बुक में लिखा हुआ है। अगर आप हिंदी में प्रोनाउंस करेंगे तो तंग सियोफिंग इसका होगा। और लियू सोचाई, इन लोगों का मानना था कम्यून प्रथा को बदलने जाए, क्योंकि कम्यून प्रथा प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है। कम्यून प्रथा से जो चीजें बन रही हैं वो चीजें प्रॉपर अच्छी क्वालिटी की नहीं है, इसलिए घर के पीछे में बनाई गई स्टील औद्योग के लिहाज से पूरी तरीके से अनुपयोगी है, इसलिए हमें इसको बदलना चाहिए। और अब यहीं से कन्फ्लिक्टिंग विजन 1965 to 78, दैट इज द क्रिटिकल एरा फॉर चाइना। 1965 से 78 के बीच विचारों में मतभेद हुआ, दर्शनों का टकराव हुआ, आइडियोलॉजी एक दूसरे से टकराई। जो ट्रेडिशनल थे उनकी अलग सोच, जो न्यू आइडियोलॉजी के थे उनकी अलग सोच। अब यहां पे था द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द माओइस्ट वांटिंग टू क्रिएट द सोशलिस्ट मैन एंड दोज हु ऑब्जेक्टेड टू हिज एम्फेसिस ऑन आइडियोलॉजी rather than expertise, culminated in Mao launched the Great Proletarian Culture Revolution in 1965 to counter his cities. समाजवादी व्यक्ति की रचना के इच्छुक माओवादी और दक्षता के बजाय विचारधारा पर माओ के बल देने की आलोचना करने के बीच संघर्ष चला। एक तरफ माओ कह रहे थे कि हमें आइडियोलॉजी पे विशेष ध्यान देना चाहिए, और दूसरी तरफ जो डेंग जियोपिंग और लियू सुचाओ जैसे लोग थे वो कह रहे थे कि हमें अपने अंदर दक्षता लानी चाहिए, हमें अपने अंदर वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी डेवलप करने की जरूरत है जिससे हमारा देश आगे बढ़े। यही दोनों के बीच दर्शनों का टकराव था। माओ द्वारा 1965 में छेड़ी गई महान जो ये सर्वहारा संस्कृति थी, इट मीन्स द ग्रेट proletarian culture revolution in 1965 that was launched by Mao. Counter his critics, जो अपने लोगों के द्वारा ही उसकी आलोचना की गई। पुरानी संस्कृति, पुराने रिवाज और पुरानी आदतों के खिलाफ अभियान छेड़ने के लिए रेड गार्ड्स, मुख्यतः छात्रों की सेना का प्रयोग किया गया। स्टूडेंट्स और पेशेवर लोगों को जनता से ज्ञान हासिल करने के लिए ग्रामीण इलाकों में भेजा गया। जो प्राचीनतम संस्कृति की परंपराएं थी उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए माओ ने हमको गांव में भेजा, उस आइडियोलॉजी को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए।
और जो लोग उनके विचारधारा के विरोध में आते थे उनकी हत्या कर दी जाती थी। और रेड गार्ड्स का निर्माण बनाया गया। ये रेड गार्ड्स छात्रों की सेना थी, स्टूडेंट्स थे इसमें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी यहाँ पे, ये आपको आश्चर्य करेगी कि जो आइडियोलॉजी है उसमें साम्यवादी होना पेशेवर ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। आप कितने ज्ञानी हैं इससे कोई मतलब नहीं था, बल्कि जरूरी था क्या, आइडियोलॉजी बीइंग कम्युनिस्ट वाज मोर इंपॉर्टेंट देन द हैविंग प्रोफेशनल बनने की तुलना में आप आइडियोलॉजी को कितना मान रहे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये विचित्र बात थी। अब कहते थे कल्चरल रिवोल्यूशंस बिगेन टू पीरियड ऑफ टर्मोइल, weakened the party and severely disrupted the economy and the educational system. From the late 1960s, the tide began to run in 1975. The party once again laid emphasis to greater socialist discipline and need to build an industrial economy so that the China could become the power before the end of the century. इसीलिए सांस्कृतिक क्रांति से खलबली शुरू हो गई और पार्टी धीरे धीरे कमजोर होती गई। अर्थव्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था में भारी रुकावट आई। 1960 के उत्तरार्ध में आते आते मिड 19 ये बदलाव हुआ चीन में। शिक्षा व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, अर्थव्यवस्था खराब हो गई। लेकिन 1975 में एक बार फिर पार्टी ने अधिक सामाजिक अनुशासन और औद्योगिक अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए जोर दिया ताकि चीन शताब्दी के खत्म होने से पहले एक शक्तिशाली देश बन सके। और ऐसा चीन में हुआ। रिफॉर्म फ्रॉम 1978। व्हाट वाज द रिफॉर्म? क्या बदलाव हुआ? दैट इज द इंपॉर्टेंट। कहते थे कल्चरल रिवोल्यूशन वाज फॉलोड बाय प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल द मैनोवरिंग। Deng Xiaoping kept party control strong while introducing the socialist market economy. In 1978, the party declared its goal as the four modernization: to develop science, to develop industry, agriculture, and defense. Debate was allowed as long as the party was not questioned. कहते अब 1978 से शुरू होने वाले सुधार जो चीन में हुए उसमें क्या बदलाव हुआ? तो कहते सांस्कृतिक क्रांति के बाद, कल्चरल रिवोल्यूशंस के बाद जो पॉलिटिकल दांवपेचों की प्रक्रिया शुरू हुई उसमें तंग सियोफिंग ने पार्टी पर नियंत्रण मजबूत बनाए रखा और साथ ही देश में समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था की शुरुआत की। 1978 में पार्टी ने मॉडर्नाइजेशन के लिए जो फोर उनके गोल थे वो डिक्लेयर किए। 4 उनके जो लक्ष्य थे उसकी घोषणा की। ये थे साइंस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड डिफेंस। और पार्टी ने इन चीज़ों के साथ एक बात और की, लोगों की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस में कुछ छूट दी। लेकिन छूट के साथ साथ उसमें कुछ बाध्यता भी लगाई गई, उसमें कुछ रोका भी गया। कहा गया कि आप क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं लेकिन उस हद तक जहां पे आप पार्टी से कोई सवाल जवाब ना करें, पार्टी से कोई बहस ना करें। आपको प्रश्न पूछने का अधिकार है लेकिन एक सीमा तक ही। पार्टी से सवाल जवाब ना करने की हद तक आपको बहस करने की इजाजत है, आपको परमिशन है, आपको इसके लिए अनुमति दी गई है। इस नए आजाद वातावरण में जैसे कि 60 साल पहले 4 मई के समय था जब नए विचारों का रोमांचकारी भंडार फूट पड़ा। 5 दिसंबर 1978 को दीवार पर लगे एक पोस्टर ने फिफ्थ मॉडर्नाइजिंग का दावा किया कि लोकतंत्र के बिना अन्य आधुनिकताएं कुछ भी नहीं। उसने गरीबी न हटाने, उसने जेंडर इक्वलिटी न खत्म कर पाने और सीसीपी की फेल्योर की आलोचना की। आई मीन टू से दैट इन द न्यू द लिबरेटिंग क्लाइमेट एट द टाइम ऑफ द May 4th
movement 60 years earlier, there was an exciting explosion of new ideas on 5th December 1978. A wall poster, the fifth modernization, proclaimed that without democracy, the other modernization would come to nothing. It went on a critiques the CCP for not solving the problem of poverty or ending sexual exploitation. Even the sitting cases of such abuse from within the party. जब एक तरफ सीसीपी पार्टी कह रही थी कि हम चीन से पूरी तरीके से दरिद्रता, गरीबी, बेरोजगारी ये सब मिटा देंगे, लेकिन सीसीपी पार्टी इन चीज़ों में सफल नहीं हो पा रही थी। इसीलिए 5 दिसंबर 1978 को दीवार पे लगे एक पोस्टर ने चीन में फिफ्थ मॉडर्नाइजेशन की बात की, उसकी घोषणा कर दी। और फिफ्थ मॉडर्नाइजेशन में उन लोगों ने कहा कि बिना डेमोक्रेसी के लाए फिफ्थ मॉडर्नाइजेशन नहीं आ सकती, बिना डेमोक्रेसी के ये सब फिफ्थ मॉडर्नाइजेशन की बात कुछ भी नहीं है, बेकार की बात है। 5 दिसंबर 1978 को दीवार पर लगे पोस्टर ने पांचवी आधुनिकता का दावा किया कि लोकतंत्र के बिना अन्य आधुनिकताएं कुछ भी नहीं हो पाएंगी। और इस विरोध प्रदर्शन वाले लोग कह रहे थे कि गरीबी न हटाने, it means the people who oppose the communist ideology, it went to criticize the CCP party to not solving the problem of poverty or ending sexual exploitation. वो लोग सीसीपी पार्टी की आलोचना कर रहे थे क्योंकि अभी तक जो लैंगिक शोषण खत्म नहीं हुआ था, गरीबी हटी नहीं थी। इसके लिए उसने पार्टी के अंदर ही ऐसे उदाहरण बताए जो कि क्या शो कर रहे थे, जो ये बता रही थी कि किस तरीके से लोगों की मांग को दबाया जा रहा है। कहता है द डिमांड्स वर सप्रेस्ड बट इन 1989 द 17th एनिवर्सरी ऑफ द May 4th मूवमेंट, many intellectuals called for a greater openness and into ossified dogmas. Su Zhaozi. Student demonstrators at Tiananmen Square in Beijing were brutally repressed. This was strongly condemned around the world. The post-reform period has seen the emergence of debate on way to develop China. The dominant view supported by the party is based on strong political control, economic liberalization, and integration into the world market. The critics argue that increasing inequalities between social groups, between regions, and between men and women are creating social the tension and the questions the heavy emphasis on the market. Finally, there is a growing revival of earlier so-called traditional ideas of the Confucianism and argument that China can build a modern society following its own traditions rather than simplifying the copying the West. कहता है सुधार के बाद, कहता है इन मांगों ने चीन को दबाया। 1989 में 4 मई के आंदोलन की 70वीं सालगिरह पर बहुत से बुद्धिजीवियों ने ज़्यादा खुलेपन और कड़े सिद्धांत सू शाओजी को खत्म करने की मांग की। कहता डॉगमास, कड़े सिद्धांतों की दबाने की बात की। बीजिंग के तियानमेन चौक पर छात्रों के प्रदर्शन को बड़े ही ब्रूटली दबा दिया गया, सप्रेस कर दिया गया। दुनिया भर में इसकी आलोचना की गई। सुधार के बाद के समय से में चीन के विकास के विषय पर दोबारा बहस शुरू की गई। पार्टी द्वारा समर्थित प्रधान मत मजबूत राजनीतिक नियंत्रण, आर्थिक खुलेपन और विश्व बाजार से जुड़ाव पर आधारित था। आलोचकों का कहना है कि सामाजिक गुटों, क्षेत्रों, पुरुष और महिलाओं के बीच बढ़ती हुई असमानताओं से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है
और बाजार पे जो भारी महत्व दिया जा रहा है, जो मार्केट को एम्फसाइज किया जा रहा है, उस पर लोगों ने सवाल खड़ा कर दिए। अंत में पहले के पारंपरिक विचार पुनर्जीवित हो रहे थे, जैसे कि कन्फ्यूशियसवाद और यह तर्क कि पश्चिम की नकल करने की बजाय चीन अपनी परंपरा पर चलते हुए आधुनिक समाज बना सकता है। कहते क्रिटिक्स आर्ग्यूड दैट इंक्रीजिंग द इनइक्वलिटीज between social groups, between regions, and between men and women are creating social tension. The question that heavy emphasis on the market. Finally, there is a growing revival of the earlier so-called traditional ideas of the Confucianism and arguments that China can build a modern society following its own traditional rather than simply copying the West. इस बात की तेजी से उठने लगी विचार और अब यहीं से चीन में एक नया बदलाव दिखाई देता है, एक नए तरीके की क्रांति दिखाई देती है। माय डियर, आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है? 1978 के रिफॉर्म के बाद चीनी लोग बिना किसी रोक के स्वच्छंद रूप से अपने वस्तुओं को, अपने आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदने में समर्थ होने लगे। अब लोगों के पास पैसे आने लगे। जब थोड़ा ओपन मार्केट हुआ, जब इकोनॉमी खुली, क्रांति ने अपने नए स्वरूप को नए रूप में दिखाया। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब चीन के लोग इस बात के लिए क्या हो रहे थे? आगे बढ़ रहे थे। उन्हें भी अपने अधिकारों की आवश्यकताएं कंप्लीट मिल रही थी। एक लंबी लड़ाई के बाद चीन विकास के पथ पे आगे बढ़ चुका था। तो आज के लिए इतना ही, फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।